Hello student, how are you? Hope you are doing well. In the previous video, I have explained the meaning of the poem The Raven and the Fox. I hope you will understand clearly. Now we will do grammar part. So without any further ado, let's get started. Open your book at page 15. Read the poem again and match the words in the column A with their meaning in column B. Check your answer with your teacher and classmates. In column A, there is a difficult word, and in the column B, there are meanings. You should match the words with their meaning. First word is perched. I already आपको explained the meaning. Sat on a branch. So here fourth meaning, column B, sat on a branch. You should write 1. Morsel, a piece of small food. So first column B, first a small piece of food, you should write 2. Word number 3, seek. Seek means look for something. So fifth answer, to look for something, you should write 3. Fourth, pride. Pride means feeling very proud that you are better. So third meaning is feeling that you are better than others. So you write down 4. Then fifth word is eyed. Eyed means to look with something and with greediness. So second, looked with interest at something. तो यहाँ पर write down 5. Sixth है limb. Limb is part, अंग. So here limb meaning is branch of a tree. So you should write 6. And seventh is woods. Woods means small area forest. You can say jungle. So sixth है a small area forest with the similar kind of trees. So your number will 2, 5, 4, 1, 3, 7, 6. Come to next. First and second question is done. Now let us think and reflect. This part, first question. Look at the pictures. नीचे pictures दी हुई हैं 4 and number them in the order that they happen in the poem. पोएम में जैसे से हैपन घटना हुई है उसके अकॉर्डिंग हम उनको नंबर देंगे. So in the first picture, Fox was looking at the morsel. No, it is not the beginning. And second also top right, the fox was running. It was not also beginning. And the bottom right, you can say, you can see raven is sitting on the branch with a piece of wood. तो बॉटम का राइट जो है वो उस पर आप फर्स्ट लिखेंगे. इधर बॉटम के राइट में फर्स्ट लिखेंगे. एंड सेकेंड टॉप लेफ्ट द फॉक्स. हियर इज फॉक्स फ्लैटरिंग द क्रो फॉर टेकिंग अ पीस ऑफ वुड. सो इधर हियर इज सेकेंड. And third is bottom left. Here the food falls on the ground and crow is also there, raven is also there. So it is third. And fourth is top right. The fox runs away with the food here. So this picture is number 4. So one is bottom right. Second is top left. And third is bottom left and fourth is top right. Okay. Yes, students, turn your book at page 16. Question number 2. Read the following lines and answer the questions that follow. Sir Raven, you are a handsome bird. तुम एक बहुत सुंदर पक्षी हो. Such feathers, if you would only sing. आपके feathers बहुत सुंदर हैं. अगर आप गाना गाओगे, the birds of these woods would call you king. तो इस जंगल के जितने भी पक्षी हैं वो आपको राजा कहेंगे. Here the fox flatters the raven. And now question is, such feathers refer to dash feathers. Such feather का मतलब क्या है यहाँ पे? Shiny and beautiful, black and dull, grey and long, short and attractive. तो वो तो fox जो है उसकी प्रशंसा करती है. तो shiny and beautiful answer. A पे टिक करेंगे and write down in the blanks. Question second is, why would the birds of the wood call the raven king? जंगल के पक्षी रेवन को राजा क्यों कहेंगे?
तो आंसर आप इतना क्वेश्चन में से देखेंगे, द बर्ड्स ऑफ द वुड कॉल रेवन द किंग बिकॉज द फॉक्स सेज इफ द रेवन कैन सिंग वेल, अगर रेवन अच्छा गाना गाएगा, ही डिजर्व्स टू बी द किंग ऑफ बर्ड्स, तो उसको सभी डिजर्व करेगा पक्षियों का राजा कहलाने में. ओके. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डज द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन एज सर. फॉक्स जो है रेवन को सर क्यों बोलती है. द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन एज सर टू फ्लैटर हिम एंड ट्रिक हिम. वो उसकी चापलूसी करती है और अपनी चाल चलती है वो टुकड़ा पाने के लिए. नाउ सेकेंड संजा लाइन्स. द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक. रेवन उसको जोक समझ नहीं आया जो फॉक्स कर रही थी. फॉरगेट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक. भूल गया कि उसकी आवाज तो एक काऊ काऊ है, कौवे की तरह है, अच्छी आवाज नहीं है. ही ओपन्ड हिज बीक. वो अपनी बीक खोल देता है, खोल दी उसने. इन हिज फूलिश प्राइड. अपने घमंड में, बेवकूफी वाले घमंड में. अब क्वेश्चन इज व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक. रेवन ने अपनी बीक जो है ओपन क्यों करी. द रेवन ओपन हिज बीक टू सिंग. उसने गाना गाने के लिए अपनी बीक को खोला. क्वेश्चन सेकंड इज कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइंस. आपने वन वर्ड पढ़ना है. पहले फॉक्स है, फिर क्लावर, यानी कि फॉक्स एक बर्ड है और क्लावर मतलब उसकी क्वालिटी है. तो रेवन एक बर्ड है और उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि वो बेवकूफ बन गया तो यहाँ पे क्लावर का अपोजिट फूलिश आएगा. ओके. क्वेश्चन थर्ड इज व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक. रेवन कैसे भूल गया कि उसकी आवाज तो काऊ काऊ करती है. तो आंसर है द रेवन forgets that his voice is just a croak because he becomes proud. उसको घमंड आ गया after hearing the fox praise. फॉक्स की जो प्रेस सुनी उसने तो उसको घमंड आ गया. Now come to the question 4. How does Renaud make the raven sing? उसने रेवन को कैसे गाना गाने के लिए प्रेरित किया. Renaud flatters the raven. उसने उसकी फ्लैटरी की and praises his beautiful wings, feathers. उसके ब्यूटीफुल फेदर्स की उससे प्रशंसा की. एंड द रेवन ओपन्स हिज बीक टू सिंग. और रेवन ने जैसी प्रशंसा सुनी उसने अपनी चोंच खोल दी. क्वेश्चन 5. व्हाई डज रेनॉल्ड से द प्राइड इज नॉट वाइज. रेनॉल्ड ने क्यों बोला कि प्राइड करना अच्छी बात नहीं है. तो रेनॉल्ड सेज दैट प्राइड इज नॉट वाइज बिकॉज द रेवन लूजेस हिज फूड ड्यू टू हिज प्राइड. क्योंकि उस कौवे ने प्राइड के कारण ही अपना खाना नीचे गिरा दिया था. Question 6. Give one reason why the teaching is quite a surprise. Yes, it is surprising because Renaud the fox who tricked the raven is the one teaching him the lesson about pride. क्योंकि फॉक्स सिखा रही थी प्राइड का लेसन, तो ये बड़ी ही सरप्राइजिंग वाली बात है. Come to the question 7. Imagine someone praises you too much. कल्पना करिए कि आपकी कोई प्रशंसा करता है. How would you react? तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे. मैं आपका तो नहीं जानती लेकिन अपना बता सकती हूँ. आई वुड थैंक द पर्सन बट रिमेन्स हम्बल. मैं उसका धन्यवाद दूंगी लेकिन हम्बल रहूंगी. एंड वुड नॉट बिकम प्राउड और ट्रस्ट फॉल्स प्रेज. और फॉल्स प्रेज के ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी. Next, let us learn. Try the rhyming words from the poem. One has been done for you. हर स्टेंजा में से हमने राइमिंग सर्च करने हैं. लिम्ब, लिम्ब के साथ हिम है. दूसरा है, आप चेक करिए स्टेंजा 1 में बीक, बीक का राइमिंग वर्ड सीक है. सेकेंड स्टेंजा वर्ड, वर्ड का राइमिंग वर्ड बर्ड है. एंड सेकेंड वर्ड वहां पे है सिंग, सिंग का राइमिंग वर्ड किंग. स्टेंजा थर्ड जोक, जोक का राइमिंग वर्ड क्रॉक है. और सेकेंड है थर्ड स्टेंजा में प्राइड, प्राइड का राइमिंग वर्ड वाइड. फोर्थ स्टेंजा में नो, नो का राइमिंग वर्ड ग्लो है. एंड वाइज, सेकेंड वर्ड है वाइज और उसका राइमिंग वर्ड सरप्राइज. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17. स्टडी द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द पोएम. For the raven held in his great big beak, the words big and beak begin with the same B sound. So, students, let us read the lines. Alliteration. What is alliteration?
इंग्लिश में भी फिगर ऑफ स्पीच होती हैं, जैसे कि हिंदी में अलंकार होते हैं। एलिट्रेशन का मतलब होता है कोई वर्ड जो है कंसोनेंट साउंड बार बार आए। Alliteration is a repetition of consonant sound at the beginning of the words. When two or more words together begin with the same sound, it is called alliteration. तो दो वर्ड या तीन या चार आए लगातार तो हम उसको alliteration कहेंगे। एंड सेकेंड स्टेंजा में नाउ पिक द एग्जांपल ऑफ alliteration फ्रॉम स्टेंजा सेकेंड। तो स्टेंजा सेकेंड में द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स, यहाँ पे एस साउंड इज रिपीटेड, तो दिस इज alliteration. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, choose the correct opposite from the box given below and complete the table. There are two extra words that you will not need. यहाँ पे दो extra word हैं, बाकी सारे इसके opposite हैं. Words perched, perched means बैठना, तो यहाँ इसका opposite होगा flew, flew means उड़ना. Forgot, forgot means भूलना, तो इसका opposite होगा remembered, remembered means याद करना. Third है foolish, you know very well, foolish का होगा wise, तो वाइज राइट डाउन. फोर्थ प्राइड, प्राइड का मतलब घमंड करना, और प्राइड का अपोजिट है ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता दिखाना. एंड फिफ्थ है लाफ्ड, लाफ्ड मीन्स हंसना, और यहाँ पे इसका अपोजिट है क्राइड, क्राइड मीन्स रोना. एंड नेक्स्ट है इग्नोर, इग्नोर मीन्स इग्नोर करना, और उसका अपोजिट है नोटिस, यानी कि नोटिस करना, ध्यान से देखना. सेवंथ है ग्लो, ग्लो का मतलब रोशनी, और यहाँ पर अपोजिट इसका है डिम, डिम का मतलब थोड़ा अंधेरा. ओके, यूज एनी फोर वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव टू मेक अ सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. आपने इस टेबल से कुछ वर्ड लेके आपने सेंटेंस बनाने हैं. पहला हम वाइज का बनाते हैं. तो वाइज पर्सन लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है. ये सेंटेंस है. यू कैन मेक अनदर, यू कैन मेक अनदर सेंटेंस. ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी इज अ ग्रेट क्वालिटी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, विनम्रता बहुत अच्छी क्वालिटी है. नोटिस, शी डिड नॉट नोटिस दैट हर फोन वाज मिसिंग, उसने नोटिस ही नहीं किया कि उसका फोन मिस हो गया. डिम, द लाइट इन द रूम वाज टू डिम टू रीड अ बुक, कमरे की लाइट इतनी डिम है कि मैं वो किताब नहीं पढ़ पा रही हूँ. तो ये आपके जो है सेंटेंसेस हैं. यू कैन मेक अनदर सेंटेंसेस ऑफ अनदर वर्ड्स. ये स्टूडेंट, come to the page next, page number 18. Let us listen. You will listen to what the crow did after he lost his food. आपने अब ये सुनेंगे कि जब उसका खाना चला गया तो उसने क्या फील किया. As you listen, mark the given statement as true or false. जब आप लिसनिंग आपका हो जाएगा, पैराग्राफ सुन लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रू एंड फॉल्स तीन दिए हुए हैं, वो बताने हैं. नाउ ओपन योर बुक एट पेज 37. See here. See here, the raven and the fox. Dear students, प्यारे बच्चों, the crow felt really sad. crow ने बहुत ही जो है दुखी हो गया, because the fox cheated him, क्योंकि fox ने उसको चीट किया था. In the quiet night, रात को, शांत रात को, the crow thought and said to himself, crow ने सोचा और उसे अपने आप से कहा, I was fooled by kind words. मैं मीठे मीठे शब्दों में मूर्ख बन गया, क्योंकि उसे बोला था कि आपके पर सुंदर हैं. बट आई हैव लर्न समथिंग इम्पोर्टेंट, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज सीखी है मैंने. इवन इफ आई डोंट हैव ब्यूटीफुल फेदर्स, हालांकि मेरे ब्यूटीफुल फेदर्स नहीं है, बट आई एम स्मार्ट, लेकिन मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ, सुंदर हूँ, स्मार्ट हूँ. टू शेयर हिज विजडम, अपनी विजडम को शेयर करने के लिए ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ जर्नी, उसे एक जर्नी मतलब एक यात्रा पर गया. ही वांटेड टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स, वो सभी जानवरों को बताना चाहता था, टू बी केयरफुल विद वर्ड्स, कि मीठी मीठी शब्दों से, बातों से बच के रहें. ही टोल्ड देम, उसने उनको बताया, डू नॉट लेट प्राइड लूज व्हाट यू हैव. मीठी मीठी बातों में आकर आपके पास जो है वो आपको नहीं गंवाना है, सावधान रहना चाहिए मीठी मीठी बातों से. तो नाउ यू विल डू ट्रू फॉल्स. द क्रो वाज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड. हाँ, वो दुखी था क्योंकि उसका खाना खो गया था, उसका टुकड़ा चला गया था, मॉर्सल. तो यहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे. द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट. क्या उसने ये सोचा कि लवली फेदर से वो स्मार्ट बन रहा है? नहीं, उसने ऐसा नहीं सोचा था, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा. द क्रो वांटेड टू टेल हिज फ्रेंड नॉट टू बी प्राउड. क्रो अपने फ्रेंड्स को बताना चाहता था कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, तो ये ट्रू है, तो यहाँ पर आप
ट्रू लिखेंगे थर्ड में। Yes, student, come to the next question. Let us speak. Narrate the poem in the form of a story. ये जो आपने पोएम पढ़ी है, इसको स्टोरी की फॉर्म में आपको नरेट करना है. Give a different ending और एंडिंग डिफरेंट देनी है. You may begin like this. ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं. Now, let us start. This is a story about a clever fox named Renaud and Mr. Raven. ये मिस्टर रेवन और रेनॉड की कहानी है. One day, एक दिन, Mr. Raven was sitting on a branch of a tree. Mr. Raven पेड़ की शाखा में बैठे हुए थे. With a piece of food in his beak. उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था. Now Renaud wanted to take that food. वो उस भोजन को लेना चाहती थी. She started praising and flattery to Raven's beautiful feathers. उसके feathers की प्रशंसा करने लगी and said that if he could sing, अगर वो गाना गाए, he would be the king of birds. वो सब पक्षियों का राजा हो जाएगा. But Raven remembered the past lesson. उसको याद आया पहले क्या हुआ था. He shook his head. उसने अपना गर्दन हिला दिया and refused to open his beak. और अपने बीक को खोलने से मना कर दिया. Instead he flew away to the higher branch. वो दूसरी शाखा पर जाकर बैठ गया and out of Renaud's reach, उसकी पहुंच से बाहर हो गया and enjoy the piece of food. और वो enjoy करने लगा. अब Renaud was hungry, but he learned that his stick would not work forever. कि उसकी चालाकी हमेशा नहीं चलेगी. तो क्या मोरल है इस स्टोरी का? A wise person learns from his past mistake. जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हैं. तो ये स्टोरी है. आगे आपको डायलॉग में लिखना है तो ये आप खुद लिखेंगे. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. गुड बाय.